In the previous class, we have done the statement of the Bernoulli theorem. What was the statement? That in a streamlined flow of incompressible liquid, in a streamlined flow of incompressible fluid, in a streamlined flow of incompressible fluid, the sum of kinetic head, potential head, and pressure head. Potential head and pressure head is constant. Pressure head is constant. ठीक है? In streamlined flow of incompressible fluid, the sum of kinetic head, potential head, and pressure head is a constant. ठीक है? ये सब का इन सब का सम क्या होता है बच्चे? Constant. और we have write the formula also that P plus half rho V square plus rho GH is a constant. This we have done till the previous class. Now we have to prove this formula that the sum of the pressure half rho V square and rho GH is a constant. Now we have to prove this formula. देखिए बच्चे, how to prove? Let us consider a pipe of this shape. Let us consider a pipe of this shape. This is the first surface, this is the second surface. Here, suppose the fluid is flowing from the first surface to the second surface. So fluid flows from where to where? बताइए बच्चे, फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता है? Fluid flow from high pressure to low pressure. If the fluid is flowing from the first surface to the second surface, then what's my job? My job is to maintain the pressure difference between P1 and P2. अगर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहेगा एंड P1 ग्रेटर देन P2 रहेगा तो फ्लूइड अपने आप 1 से 2 फ्लो कर जाएगा. यस और नो? If the P1 is greater than P2, then fluid will itself flow from P1 to P2 because fluid always flow from high pressure to low pressure. Let's suppose its cross sectional area is A1, its cross sectional area is E2. ठीक है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. यहां पर वेलोसिटी V1 है और यहां पर वेलोसिटी कितनी है बच्चे? V2. At surface A1 velocity is V1, at surface A2 velocity is V2. ठीक है? Let's suppose the height of the first and the second surface from the ground is H1 and H2 respectively. The height of the first surface from the ground is H1 and H2 respectively. Now, as you know, by equation of continuity क्या होता है बच्चे? A1 V1 is equal to A2 V2. इसका मतलब क्या था? अगर एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो यहां से V2 का फॉर्मूला क्या आएगा? A1 V1 upon A2. This implies V2 will be greater than V1. जैसे जैसे वो एरिया पाइप पतला होता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है. एरिया कम होता जा रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चे? बढ़ता जा रहा है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है? लेट स्मॉल है, इसका जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो रो है. स्मॉल एम इज द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड. स्मॉल एम आपने क्या मान लिया? मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड. स्मॉल एम इज मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड. Why I am using the term per second? Because आप टाइम ऑन रहने दीजिए, पानी जितना मर्जी मास बह जाएगा. ऑल्दो अगर मैं यहाँ पर सेकंड ना भी लगाऊं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माय डेरिवेशन. लेकिन यहाँ मैं पर सेकंड इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आई कैन मेजर द मास व्हिच इज फ्लोइंग टू द पाइप इन 1 सेकंड. तो मैं सारी चीजें पर सेकंड में लेके चलूंगा. V be the volume of fluid, capital V be the volume of fluid flowing per second. पर सेकंड समझ आ रहा है क्या है? क्योंकि अगर मैं टैप ऑन करके छोड़ दिया तो पानी बहते चला जाएगा. आई कैन नॉट मेजर कि कितना मास बह गया, आई कैन नॉट मेजर कितना वॉल्यूम. बोलो टाइम की डिपेंड करेगा. लेकिन अगर मैं 1 सेकंड का मेजर करूंगा तो हमेशा सेम रहेगा. तो आप देखिए बच्चे, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई हैव डन.
आई हैव जस्ट मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड अपने आप बाकी काम कर रहा है। तो वर्क डन ऑन फ्लूइड, वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड, मैंने क्या काम किया है, आई हैव मेंटेन द प्रेशर एनर्जी डिफरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी, पीवी। तो आई हैव, व्हाट इज द फॉर्मूला, P1V minus P2V, let it to be funny, first equation, I have maintained P1 at greater pressure than P2। फ्लूइड ने क्या किया, वर्क डन बाय फ्लूइड पर सेकेंड, व्हाट फ्लूइड हैज डन, फ्लूइड ने A1 से 2 जाने में अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया है, एज पर द फिगर उसने अपना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज करा है, हाइट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। फ्लूइड ने क्या किया है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर ली है। व्हाट फ्लूइड हैज डन, फ्लूइड हैज इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्लूइड कितना आएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh2 माइनस mgh1। लेट टू इक्वेशन 2। नाउ बच्चे बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली थ्योरम इज बेसिकली द वर्क एनर्जी थ्योरम। बर्नौली थ्योरम इज बेसिकली द बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉडी, जिसको आपने शॉर्ट में वर्क एनर्जी पार्ट में वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बॉडी पे वर्क डन किया, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर ली, ठीक है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉडी। तो बाय वर्क एनर्जी वो थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम जो इसका प्रिंसिपल है, वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड, वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्लूइड पर सेकेंड, बाय फ्लूइड पर सेकेंड। आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए बच्चे, P1V माइनस P2V इज इक्वल टू हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। वन वाई टर्म्स एक तरफ, P1V प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2V प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। ये आ जाएगा डिवाइड बाय V, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय V, तो ये आ जाएगा P1 प्लस M चल रहा है, डिवाइड बाय V, तो ये आ जाएगा P1 प्लस हाफ M V1 का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम प्लस ये MSR प्लस mgh1 अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ M बाय V V2 का स्क्वायर प्लस M बाय V gh2। ये आ जाएगा बच्चे, आपने इस इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे कि P प्लस हाफ, P प्लस हाँ थे P प्लस P1 प्लस हाफ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। यही आ रहा है बच्चे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि जो इनिशियल पीक, जो प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी एच का सम इनिशियली था, वही प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच का सम बाद में आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट आई कैन से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज अ कांस्टेंट।
जो P प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH का सम पहले था, वही P2 प्लस हाफ रो VT स्क्वायर प्लस रो GH2 आने का मतलब है कि जो इनका सम पहले था वही आंसर बाद में आ रहा है। ना यू आज पीछे कोई कुछ कह रहा था, पीछे से आवाज आई। यस, देखो बच्चे, एनर्जी एनर्जी का एनर्जी के नॉन कन्वर्ट, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी रहेगी, है ना। जितनी एनर्जी जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी। तो वर्क डन, मैंने क्या वर्क डन किया है, आई हैव मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस। तो P1V माइनस P2V इज माई वर्क डन। फ्लूइड ने क्या किया, पाइप पतला होता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाता चला गया अपने आप। फ्लूइड ने अपना वेलोसिटी अपने आप बढ़ाया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड प्लस हाइट भी फ्लूइड की बढ़ रही है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, ठीक है। इनको एक तरफ लिख लिया, इसको एक तरफ, दोनों को इक्वेट कर दिया, बस बाकी तो कुछ नहीं कर, बाकी जैसे कैलकुलेशन है। हो गया बच्चे। Anybody, any doubt in this can ask. अक्षिता, बच्चे समझ आ गया। पीयूष, पीयूष, ओके। सारा सीधा क्लियर है बच्चे, ओके गुड। शुड आई रबिट, सबका नोट हो गया। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। ऑल्दो आप अगर यहाँ पर सेकंड वर्ड यानी नहीं भी यूज करें तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। फर्स्ट, ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं कि आप एक बॉटल लीजिए, इसकी नेक पर एक कागज रखिए, यहां से एयर ब्लो कीजिए। व्हाट विल हैपन, कागज अंदर चला जाएगा। यस और नो, यस और नो, नहीं जाएगा, कागज बाहर आ जाएगा। देखिए,
है क्या बर्नौली थ्योरम, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज अ कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वहां प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एंड जहां वेलोसिटी डिक्रीज करेगा वहां प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। जहां वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वहां प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जहां वेलोसिटी डिक्रीज करेगा वहां प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। बेसिकली यही बर्नौली थ्योरम। आपने एयर ब्लो करके यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। अंदर देखेंगे वेलोसिटी लेस था, प्रेशर मोर था। कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, ये बाहर भाग जाएगा। यू कैन चेक इट एट होम। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ग्लास में करके दिखाता हूँ, पर इसके लिए ध्यान रखना बॉटल और ग्लास जो भी आप ले रहे हो पूरा सूखा होना चाहिए। ये फिलहाल अभी ग्लास गीला है। ठीक है बच्चे, आपको इसके अंदर मैंने कागज रखा हुआ है, वैसे ही गिर गया हो तो ठीक है। इसके अंदर जब मैं एयर ब्लो करूंगा तो ये बाहर अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। ग्लास गीला है, इसके लिए बस कंडीशन ये है कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज ये ग्लास क्या है, सरफेस टेंशन से अंदर ले जाती है। देखा बच्चे, कागज बाहर आ गया। आप जितनी बार बॉटल में करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको। अगर आप बॉटल में करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, फूंक मारते हो पार आ जाता है अपने आप एयर ब्लो करेंगे हल्की सी और वो कागज क्या आएगा बच्चे, बाहर आ जाएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने डेली लाइफ में क्या देखा है, पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल क्या रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे आप क्या देखते हो बच्चे कि आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पर आपसे कहते हैं येलो लाइन से पीछे खड़े हो, प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द येलो लाइन या गेट। ऐसा क्यों? सपोज आप तो अपनी मेट्रो समझ के खड़े हो कि मेट्रो आके रुकेगी, पर हो सकता है वो खाली इंजन हो, उसे रुकना ही ना हो स्टेशन पे, वो पूरी वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। यू आर स्टैंडिंग क्लोज टू द ट्रेन, वेलोसिटी लो, यहाँ पर वेलोसिटी हाई है, प्रेशर लो है। आपके पास वेलोसिटी लो है, प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ट्रेन आपको अपने आप अपने अंदर खींच लेगी। ट्रेन विल इटसेल्फ अट्रैक्ट यू टुवर्ड इट। इसीलिए कहते हैं हमेशा पटरी से दूर खड़ा रहना, रेलवे लाइन से दूर खड़ा होना चाहिए। बिकॉज इन केस अगर वहां पर ट्रेन की वेलोसिटी हाई हुई रेलवे लाइन पे, तो फास्ट मूविंग ट्रेन हर चीज को अपनी तरफ खींचती हुई चलती है। फास्ट मूविंग ट्रेन हर चीज को अपनी तरफ खींचती हुई चलती है। देन ट्रेन विल पुल यू टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ड्यू द प्रेशर डिफरेंस। थर्ड, आपने और क्या देखा बच्चे, आपने देखा जब थंडरस्टॉर्म और स्टॉर्म इन द विलेज, तो गांव के घरों की छत उड़ जाती है, कच्चे हाउसेज। ऑल दो छत शहरों में भी उड़ जाती हैं, शहरों में आपके घर पर लेंटर तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं कि पक्के में उड़ेंगे नहीं, उड़ ये भी सकती है। लेकिन गांव की आप सबको पता है, गांव के झोपड़ों की छत उड़ जाती है बारिश बारिश तूफानों में। क्यों उड़ जाती है बच्चे? बस ये सेम प्रॉब्लम आपके घर की छत भी उड़ा सकता है। होता क्या है बच्चे, बाहर तूफान आ रहा है, ये खिड़के था, गेट था, झोपड़ी में सब कुछ था हट के अंदर, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो क्या करते हैं बच्चे, फार्मर दे क्लोज द डोर, वो डोर और खिड़की एंड विंडो बंद कर देते हैं। ठीक है, अब बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, वेलोसिटी हाई है एंड प्रेशर इज लो। अंदर उन्होंने खिड़की बंद कर दी, खिड़की गेट बंद कर दिए, तो वेलोसिटी लो है, प्रेशर हाई है। प्रेशर क्या है? हाई। कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, छत उड़ जाएगी। तो इसलिए अगर कहीं पर कच्चे हाउस में हो तो और आपको लग रहा है कि हाँ भाई, या आपने टी शर्ट घर के ऊपर पड़वा रखा है, या कुछ लोग फोर्थ फ्लोर पे कुछ अपना छोटा रूम बनवा लेते हैं लकड़ी का, उनको बारिश तूफान के अंदर अपने घर के खिड़की के दरवाजे खोल देने चाहिए, ताकि अंदर वेलोसिटी हाई हो जाएगी, प्रेशर लो रहेगा, छत नहीं उड़ेगी। अगर आपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए तो ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और वो उड़ जाएगी। ठीक है, योर परफ्यूम जो होते हैं स्प्रेयर, ऑल ऑफ दीज वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। स्प्रेयर जो जितने भी परफ्यूम वगैरह होते हैं, आप बटन प्रेस करते हो, परफ्यूम नीचे से ऊपर आ जाता है। यू प्रेस द बटन एंड परफ्यूम नीचे से कहां आता है बच्चे,
ऊपर भाग जाता है। वाई इट इज सो, उसके अंदर एक पाइप पड़ा होता है बच्चे, या शक्कर, आप कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ जाती है, आप कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ जाती है। दैट ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली थ्योरम। व्हाट्स हैपनिंग हियर, बाय प्रेसिंग इट यू इंक्रीज द वेलोसिटी हियर। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। अंदर पानी फ्लूइड रेस्ट पर है, वेलोसिटी लेस है, प्रेशर हाई है। कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फ्लूइड अपने आप ऊपर आ जाता है। ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, नीचे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर लेस होता है, प्रेशर हाई होता है, वो ऊपर आ जाता है। वेलोसिटी लेस, प्रेशर हाई, वो ऊपर आ जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का एक्सप्लेनेशन भी बर्नौली जी ने दिया है कि हार्ट अटैक क्यों होता है। जब बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। देखिए बच्चे, सपोज दिस आर्टरी और वेन, कुछ तो है जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है। हियर इट इज अ ब्लॉकेज, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, दिस इज अ ब्लॉकेज, और यू कैन से बैड कोलेस्ट्रॉल, और यू कैन से बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब इसके यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा था, एरिया इसका A1 था, वेलोसिटी V1 थी। यहां पर आकर एरिया A2 हो गया, वेलोसिटी V2 हो गई। कैन यू सी एरिया इज डिक्रीज फॉर द ब्लड टू फ्लो। यहां पर जब इस कोलेस्ट्रॉल इस वाली जगह से ब्लड पास कर रहा है तो A2 इज लेस देन A1। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता था कि अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता था इफ द एरिया इज डिक्रीज देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी V2 will become greater than V1। बर्नौली कहता था वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। दिस एम्प्लाई बाय बर्नौली यहां पर जो प्रेशर है, यहां पर सपोज प्रेशर P2 है, P2 विल डिक्रीज। और कोई भी चीज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हुआ क्या, यहां पर इस जगह में प्रेशर रिड्यूस हो गया, इस जगह में प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से ये आपने चिपक जाती है। अगर आप बोतल के अंदर से गैस बाहर निकालते हो तो अंदर का प्रेशर लॉस लूज कम होता है, वो चिपकती चली जाती है ना, बोतल क्रश हो जाती है। सेम केस यहाँ होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी डिक्रीज इन द ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया वेलोसिटी इंक्रीज, एंड ड्यू टू वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब ये नस आपस में चिपकनी शुरू हो जाती है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक तो ब्लॉकेज वैसे ही है, इसके अंदर ब्लड को दिक्कत होती है फ्लो करने में, ये और कोलैप्स कर जाती है। ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ द लो प्रेशर क्या होता है बच्चे, ये आर्टरी ऐसे बेंड कर जाती है, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, और ज्यादा, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिक्रीज कर चुका है। लिफ्ट ऑफ प्लेन, एरोप्लेन भी इसीलिए उड़ता है, बर्नौली थ्योरम। लिफ्ट ऑफ प्लेन, शुड आई रब इट, ओके बच्चे जो लिख रहे हैं वो नोट कीजिए।
Okay, now lift off plane. Lift off plane. देखिए बच्चे, आपने देखा है कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो बहुत देर रनवे में अपनी स्पीड इंक्रीज करता है। वाई इट इज सो? सीधा सीधा टेक ऑफ क्यों नहीं करता वो? एरोप्लेन पहले रनवे में रन करता है और कम से कम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करता है, तब वो उड़ता है। एरोप्लेन टेक एटलीस्ट एक्वायर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन रनवे, उसके बाद वो टेक ऑफ क्यों करता है? ऐसा क्यों? एक्चुअली होता है क्या है बच्चे, दिस इज द एरोप्लेन एंड दीज आर द विंग्स। इसकी जो विंग्स की शेप है वो ये काम कर रही है, ठीक है? ये आगे भाग रहे हैं, विंग्स भी ऑब्वियसली आगे भाग रहे हैं। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द दिस पार्ट ऑफ द विंग, ठीक है? अगर मैं इसने पार्ट को जूम करके बनाता हूं तो इनकी अगर आप इनका फ्रंट व्यू से देखेंगे, अगर इसका फ्रंट व्यू आप देखेंगे बच्चे प्लेन का पास खड़े होके, तो इसकी विंग्स की शेप, ये वाला हिस्सा, ये कुछ ऐसा सा होगा। मतलब ये विंग्स जो होते हैं वो ऐसे से होते हैं। मैं नहीं आ रहा वाई इट इज सो? क्योंकि जब ये विंग आगे भाग रहा है, ये विंग आगे भाग रहा है ना, तो इट इज कटिंग द एयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट इज कटिंग द एयर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन नीचे एयर नहीं कट पा रही। इसकी शेप ऐसी बनी होती है कि नीचे की तरफ एयर नहीं कट पाती, ऊपर की तरफ एयर आराम से कट 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 करते थे। तो व्हाट इज हैपनिंग, ऊपर तो वेलोसिटी हाई हो गई, नीचे वेलोसिटी लो रहती है। ऊपर प्रेशर लो हो गया, नीचे प्रेशर हाई हो जाता है। कोई भी चीज कहां से कहां जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। व्हाट इज हैपनिंग, विंग्स के नीचे प्रेशर हाई हो चुका है, विंग्स के ऊपर वाली साइड में प्रेशर लो हो चुका है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, प्लेन उड़ना शुरू कर देता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से प्लेन उड़ना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ प्लेन। This is called lift of plane due to the pressure difference created at the bottom and at the top of the wing, ठीक है? टॉप और उसके विंग्स के ऊपर नीचे बच्चे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ड्यू टू विच प्रेशर डिफरेंस प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है? तो ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए कि प्लेन का मास, पैसेंजर का मास, उसके सामान का सबको उठा ले, तो इसलिए उसको हाई स्पीड एक्वायर करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी करेगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उतनी आसानी से प्लेन टेक ऊपर उड़ेगा। ठीक है बच्चे? मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट इज, आप फेसबुक पे देखते होंगे स्नूकर की वीडियोस या फुटबॉल की वीडियो, फुटबॉल देखते होंगे, आप देखते होंगे कि यहाँ पर स्नूकर टेबल होती है, ठीक है? वो यहाँ पर ग्लास बिछा देता है, यहाँ से शॉट लेता है, वो बॉल अपने आप ऐसे घूमते हुए चली जाती है इसके अंदर। बॉल घूम क्यों रही है? उसने शॉट ऐसे मारा है, द प्लेयर हैज हिट द बॉल लाइक दिस, ये बॉल टर्न ले लेती है अपने आप। ये बॉल क्यों घूम गई, ठीक है? या फुटबॉल के केस में देखिए, दिस इज अ गोल,
here is the goalkeeper and here is the football player. It hit the football, सीधा नहीं मारेगा, वो उसे टेढ़ा टेढ़ा करता है कभी कभी, और फुटबॉल सीधा ना, ऐसे ना जाके अपने आप गोल में घुस जाती है। ठीक है, व्हाई इट इज सो? जब सीमर बॉल कराते हैं, पेसर नहीं, पेसर बॉल को सीधा फेंकता है, सीमर बॉल को हवा में लहराता है क्रिकेट में। ठीक है, दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। जब हवा में कोई बॉल घूम जाती है, इस हवा में ही, एयर में ही बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। व्हाई इट इज हैपनिंग? लेट्स सपोज एक बॉल सीधा जा रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है। सीधा जाएगा तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत बॉल अपना पाथ कब चेंज करेगी? जब सीधे के साथ गोल भी घूमेगा। ये फुटबॉलर से इस तरीके से किक करता है कि बॉल सीधा तो जाए, वो तो है ही है, लेकिन बॉल गोल भी घूमता है। बॉल ऐसे भी स्पिन कर रहा है और सीधा भी जा रहा है, तब ये ऐसा होगा। देखिए, आई एम कंसिडरिंग अ केस व्हेन द बॉल इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्पिनिंग लाइक दिस। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? आई कैन स्प्लिट दिस केस इनटू टू पार्ट्स। पहला, बॉल आगे जा रहा है, दूसरा, बॉल घूम रहा है। When the ball is moving in the forward direction, it is cutting the air in the backward direction. इसका बॉल तो एक जैसा होता है, दोनों तरफ इक्वली कट करेगा। बॉल में कुछ स्पेशल शिफ्ट होना होती है, बॉल तो स्फेरिकल होती है, जितना जैसा ऊपर होता है वैसे नीचे होता है, इट विल कट एयर इक्वली। लेकिन व्हेन द बॉल इज स्पिनिंग, तो अपने सराउंडिंग की एयर को भी वो स्पिन कराता है। जैसे खुद घूम रही है, अपने सराउंडिंग की एयर को भी वो सेम डायरेक्शन में स्पिन कराता है। नाउ यू ऐड बोथ दीज कंसेप्ट, that when the ball is moving upward, forward and is spinning, so what's happening? आप देखिए बच्चे, above the ball, velocities are in the opposite direction. फॉरवर्ड मोशन की वजह से एयर की वेलोसिटी बैक पीछे की तरफ थी, एंड स्पिन की वजह से एयर हैज वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। तो ओवरऑल ऊपर वेलोसिटी लेस हो जाती, डिक्रीज कर जाती है। बट एट द बॉटम ऑफ द बॉल, एट द अदर साइड ऑफ द बॉल, देखिए दोनों की वजह से वेलोसिटी ऐड हो रही है। Due to the forward motion, the motion of the air is in the backward direction, and due to the spin, the motion of the air in the backward direction. So overall, ball is moving in the backward direction, तो इसकी velocity increase कर गई है, pressure low हो गया, pressure high हो गया, तो due to this pressure difference वो अपने पास से deviate कर जाती है। When the ball is going like this and is spinning like this, then the pressure difference is created between the two parts. राइट और लेफ्ट साइड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो घूम जाए। ठीक है, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, वो स्ट्रेट लाइन में जाते जाते घूम जाता है। अगर ये बॉल बिल्कुल सीधा हिट होता, स्पिन नहीं करता, तो ये सीधा चला जाता। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस की वेलोसिटी इतनी आई है कि लेफ्ट और राइट साइड में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो गया और वो बेंड कर गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, और इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। It is also an application of Bernoulli theorem. It is also an application of Bernoulli theorem. ठीक है,